Hello, very good morning, students. Welcome to our class of mathematics. We were discussing the chapter number 2 of mathematics, that is about the fractions and the decimals, right? So, in the last video, we have seen the exercise 2.1 and we have also seen the example 1, 2, 3 and 4. And in the last exercise, we have done about the fractions and the type of the fractions. And today we will learn the next part of the fraction, which is the multiplication of fraction. As you can see on the screen, multiplication of fraction that we will cover in this topic, right, today. And after that, you will be able to solve the exercise 2.2, right. So let's discuss what is the multiplication of fraction, right. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में आज हमको देखना है कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है. यहाँ पर हम देखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विथ द फ्रैक्शन. व्हाट इज एग्जैक्टली द टुडेज टॉपिक इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर विथ द fractions. So it is very easy topic, so don't be worry about that. But I want to give one example before doing this exercise, right. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की पहले हम बात करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. तो what is that example? I want to explain one example. Suppose here we take a rectangle. So you can see on the screen I am making a rectangle over here, right. So this is the rectangle over here, right. So suppose if the length of the rectangle, right, we can take that is suppose 5 meter, right. 5 meter, that is the length. This is the length of the rectangle. And suppose if we take the breadth of the rectangle is 2 meter, we will take the simple value 2 meter, as you can see on the screen, right. So suppose if we want to calculate the area of this rectangle, so we know that we have to multiply the length and the breadth of the rectangle, and we can easily get the area of that rectangle. Just the area of the rectangle, the formula, as we know that what is the formula of the rectangle, right. Formula of the rectangle we can write, that is the length into breadth, right. Length और breadth को अगर हम multiply कर दें तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, right. So what we will find that here, so that is the given rectangle over here. So what we can do, we have to multiply the length and breadth, right. So the length is given 5 and the breadth is given 2, so we will get 10, right. Here यहाँ पर हमको जो इसकी लेंथ मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, हमको यहाँ पर मिल जाएगी एज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, राइट. 10 मीटर स्क्वायर, दैट इज द लेंथ area of the rectangle, right. So this is the simple example I have taken, right. So you can see on the screen, this is the area of the rectangle. So here you can see that 5 and the 2, that is the 5 is the length of the rectangle and 2 is the breadth of the rectangle. So these are the simple whole numbers in which the length and breadth of the rectangle is given, right. So this you all already know that how we can find the length and the breadth. So this is not my the purpose. This is not my purpose to teach you that how to find the area of the rectangle. But I want to explain you that suppose here if we have the length and the breadth of the rectangle in the fraction form, right. अगर यहाँ पर हमको लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमको यहाँ पर किसी होल नंबर में नहीं लेकिन किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर दिया हो, सो हाउ वी कैन फाइंड दैट लेंथ एंड ब्रेड्थ, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे. सो दिस इज माय पर्पस टू एक्सप्लेन यू दैट. सो सपोज हियर अगेन वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल. सपोज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, राइट. और इस रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो अगर इसकी जो लेंथ है, सपोज इफ़ वी टेक द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 7/1/2, राइट. सपोज इट इज़ टेकन, राइट. यहाँ पर मैंने 7/1/2 जो है ये मैंने लेंथ ले लिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट. एंड अगेन व्हाट आई कैन टेक, यहाँ पर जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को अगर मैं ले लूँ 3/1/2, राइट. So as you can see that this 7/1/2, that is 7.5 and this is the 3.5. So you can see that these are the improper fractions.
तो पहले हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है विच इज़ गिवन इनटू द होल नंबर्स, बट here we have the length and breadth into the fractions. So how we can find this value or the area of the rectangle, right? So this is our purpose to solve this problem, right? So here we have the length which is 7.5 and the breadth is that is 3.5. So again we have to follow the formula, that is length into breadth, right? Here यहाँ पर हम देखेंगे कि length into breadth, this is the formula. So again similarly we can write this value 7 1/2, right? 7.5 and it is multiplied with 3.5, right? So यहाँ पर आप देख रहे हैं these are the two improper fraction. यहाँ पर 7 1/2 और 3 1/2 जो है ना, 3.5 and 7.5, these are the improper fraction. So first of all we have to convert these numbers or the fraction into the simple fraction, right? So what we will get, 7.5 that would be equal to 15/2, right? We will get 15/2 multiply, that is 3 2s are 6 plus 1 that is equal to 7/2. यहाँ पर 3.5 जो है वो 7/2 के बराबर है and 7.5 that is equal to 15/2, right? So what we can do here, we can multiply this numerators. 15 multiply 7, right? So 15 multiply 7 कितना होगा, 15 multiply 7 जो होगा आपका 15 7 जो होता है 105 हो जाएगा, 15 7 105 and here 2 2s are 4, right? So this is the area of the rectangle, right? 105 and 4. We can also convert this proper fraction into that. If we divide 105 with the 4, so we will get some value, right? जैसे कि हम यहाँ पर 105 और 4 को अगर हम डिवाइड कर दें, so what we will get value if we divide that, so we can have here, right? यहाँ पर हम करके देख लेते हैं 105, right, which is divided with 4, right? So 4 2s are 8, right? So if we subtract this value, so I will get 2, right, on the subtraction of 10 and 8, and here is 5 will come over here, right? जो हम हमारी जो ट्रेडिशनल जो डिवीज़न मेथड होती है उसी से हम यहाँ पर कर रहे हैं. सो अगेन नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ द, है ना, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 25 बच रहा है, राइट? सो अगेन वी डिवाइड 25 विथ 4, राइट? यहाँ पर हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6, राइट? सो हियर वी विल गेट 4 6, राइट? यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 6 24 हो जाएगा, राइट? सो एट द लास्ट वी विल गेट द रिमाइंडर दैट इज 1, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 26 1/4, राइट? सो द फाइनल एरिया जो होगा हमारा होगा 26 1/4, राइट, मीटर स्क्वायर, राइट? दैट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो देखा यहाँ पर आपने, हमको यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ जो दिया था वो हमको फ्रैक्शंस में दिया हुआ था. लेंथ जो थी वो हमारी 7.5 थी और ब्रेड्थ जो थी वो हमारी थी 2.5. तो इस तरीके से यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड दोस. यहाँ पर हमने देखा कि कैसे दो मिक्स फ्रैक्शन को, है ना, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ पर, राइट? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल गिवन हियर. नाउ वी हैव टू इरेज ऑल दिस वैल्यू, राइट? यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट आइडिया. सो अब आपको यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन और जो हमारे सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद द होल नंबर, राइट? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना? जैसे कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द होल नंबर, राइट? ये हमको यहाँ पर अब करना है. इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे. नाउ इन दिस एग्जाम्पल, इसको भी मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. यहाँ पर इसको इरेज कर देंगे हम. ये जो वैल्यू है इसको हम हटा देते हैं. डिलीट कर दिया हमने यहाँ पर, इसको भी डिलीट कर देते हैं. अगेन आई कैन डिलीट दैट, राइट? इस तरीके से, राइट? तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई है, इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं, राइट? सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट यू हैव द 2 सर्कल्स हियर. यहाँ पर मैं इसको डिनोट कर देता हूँ. हियर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डायग्राम दिया है फिगर 2.1. यहाँ पर आप 2 सर्कल देख रहे हैं एंड इन दोनों सर्कल में यहाँ पर आप ये जो एरिया देख रहे हैं जिसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, सो दीज आर द शेडेड एरिया,
right? So here you can see that the area of the circle, right, that is the 1/4 is shaded and the remaining area is not shaded, right, that is the empty area, right? So here you can see that how we can represent this area of the circle, that is 1/4, and this is again 1/4 because here we have the two circle, 1 and this is the 2, right? तो हमारे पास दो सर्कल है और दोनों सर्कल को अगर हम देखें, राइट, तो उनका 1/4 एरिया जो है, दैट इज द एरिया ऑफ द 1/4 सर्कल विच इज शेडेड, राइट, यहाँ पर ये शेडेड है, राइट? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमको इन दोनों सर्कल का एरिया कंबाइनली निकालना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई दिस, राइट? सो नंबर ऑफ सर्कल आर 2, so 2 is here and the area which is shaded in both the circle which is 1/4. So as you can see that है ना, the number of circle that is 2, right? यहाँ पे आप देख सकते हैं, और the area which is shaded which is 1/4 of the 2 circle. So what we will get that यहाँ पर हमको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा that is 2 multiply 1 and it is divided with 4, right? So that is equal to 2/4. 2/4 जो होगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 के बराबर हो जाएगा, राइट? सो 1/2 एरिया जो होगा दोनों सर्कल का यहाँ पर जो है शेडेड है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, इसमें इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है दिस इज द आंसर, राइट? अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो यहाँ पर हमको ज्योमेट्रिकली और न्यूमेरिकली दोनों ही तरीके से यहाँ पर समझाया हुआ है, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से निकाला है ना। अगेन यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल में आप देख सकते हैं कि 1/4 एरिया जो है, दोनों सर्कल का 1/4 एरिया जो है वो शेडेड है, राइट? तो अगर इसको कंबाइनली हमको निकालना है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, दीज आर द फिगर्स, ये जो दो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दोनों फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और उसके बाद आपको यहाँ पर अगला जो फिगर दिख रहा है, अगला जो फिगर है फाइनल फिगर वो ये वाला है, राइट? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकली एंड एरिथमेटिक दोनों तरीके से हम यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, राइट, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। तो आई होप कि ये भी आपको आइडिया जो होगा वो समझ में आया होगा। ये यहाँ पर आपको इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आपके एक्सरसाइज 2.2 में अगर आप देखेंगे, सो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? राइट, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। दोनों को अगर हम ज्योमेट्रिकली अगर समझाएं तो इनका एरिया यहाँ पर जो है कंबाइन कर दिया गया है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ अवर आंसर, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर है 2/4, राइट? व्हाट इज़ द आंसर? आई वांट टू हाईलाइट दैट ये हमारा आंसर है जो हमने पहले ऊपर भी सॉल्व किया था। नाउ कम टू द अनदर एग्जाम्पल। हियर यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट स्क्वायर, राइट? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है और ये थर्ड स्क्वायर है। नाउ हियर यू कैन सी द सेम पोजिशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4 एरिया विच इज शेडेड, हियर इज ऑल्सो द 1/4 एरिया विच इज शेडेड एंड हियर यू कैन सी दैट 1/4 एरिया विच इज शेडेड, राइट? सो कंबाइनली हम इसको कैसे निकालेंगे? सो कंबाइनली हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/4, राइट, प्लस अगेन 1/4, राइट, प्लस यहाँ पर हम अगेन 1/4 कर देंगे और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे सो वी विल गेट 3/4, जो कि ज्योमेट्रिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट? देयर इज़ अनदर वे जिसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक और तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एडिशन करके आपको बताया, एडिशन से भी हम निकाल सकते हैं। एंड अनदर वे व्हाट वी कैन डू दैट, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, सो वी कैन गेट 3, राइट? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 स्क्वायर है हमारे पास एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 1/4। सो फाइनली हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 3/4। क्या किया हमने, 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया एंड 4 इज़ द डिनोमिनेटर, सो 3/4 जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यू कैन ऑल्सो फॉलो द वीडियो as well as the textbook and you can also make some example in your notebook and try yourself, right? Another example here you can see on the screen, this is the first square, this is the second square and third square, and in this square you have you can see the 9 parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, right? सभी जो स्क्वायर है उसमें आपको 9 पार्ट्स दिख रहे होंगे
and in each square you can get that there is the two squares are shaded. Here is also you can see that, है ना, यहाँ पर two squares जो हैं you can see the position, two squares are shaded. Here is also the two squares are shaded. So how we can do that? We can count the number of square, which is 3, right, and it should be multiply with we can write this area. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल एक स्क्वायर के अंदर 9 स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, right. Here in each square you can see there are the 9 small squares, and out of 9 2 are shaded, right. So we can write 2 upon 9, right. In this way we can also find that, right. So 2 upon 9 यहाँ पर हमने कर दिया. Now multiply this 3 and 2, right. So we will get 6, and here is 9. So 6 upon 9 you can see that again it is divided by 3, because 6 and 9 these are the multiple of 3. So 6 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So the final answer of this shaded area, that is 2 upon 3, right. The final answer is 2 upon 3. So 2 upon 3 area of these 3 squares are shaded, right. So this was again very interesting, है ना. Another way we can also do it by the addition, but here our main topic is the multiplication of the fractions. So इसीलिए हम यहाँ पर multiplication को ज़्यादा importance दे रहे हैं, right. Now we come to the another question. यहाँ पर आप देख सकते हैं, I want to erase that value, ठीक है. यहाँ पर हम आगे चलते हैं. आगे किस तरह के यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि दो फ्रैक्शंस को हम यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया और किस तरीके से निकाल सकते हैं. सो फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट यू कैन सी इट इज हाईलाइटेड इन द येलो कलर. दस टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विथ अ प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विथ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर. जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल पिकअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राई दिस, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. तो सेम यहाँ पर हमको करना होगा. कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देख रहे हैं आप, वैल्यू हमको क्या दिख रही है, 2, इट इज़ डिवाइडेड बाय 7 एंड इट इज़ मल्टीप्लाई विथ 3. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डेफिनेशन में, इस कंक्लूजन में, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें आप पढ़ रहे होंगे हमको क्या करना होता है, to multiply a whole number. So here you can see that 3 is the whole number, right. यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 whole number है, और यहाँ पर 2 upon 7 जो है that is the proper fraction, right. अगर इसकी जगह improper fraction भी दिया होता तो भी हम यही कर रहे होते, right. तो improper fraction हो चाहे proper fraction हो, अगर हम उसको किसी whole number से multiply करते हैं, so we multiply the whole number, यानी कि ये जो 3 है इसको हमको उसके न्यूमरेटर यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन राइट, इट इज़ 2 multiply with 3, right. So 3 is our whole number here and 2 is the numerator, right. This 2 is the numerator. So we have to multiply 3 with the 2 and keeping the denominator same, यानी कि यहाँ पर जो हमको डिनोमिनेटर दिया था 7 उसको हम सेम यहाँ पर रख देंगे. So what will be our answer, 2 3s are 6 and we will get the denominator 7. So 6 upon 7 जो होगा, this is our final answer, right. So I hope आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो रिपीट दैट. इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. इट इज़ वेरी ईजी, राइट. नाउ वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल. सपोज इफ वी टेक द क्वेश्चन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है. इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 5 दैट इज़ द होल नंबर and it is multiply with 2 3 upon 7 and 2 3 upon 7 ये जो देख रहे हैं आप, this is value which is the improper fraction. So how to solve this question, right. एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पर. What is our question? Question is given 5, this is which is our whole number, it is multiply with 2 3 upon 7, right. This is the improper fraction. So first of all we have to convert this improper fraction into the proper fraction, right. तो वो कैसे करेंगे? You can see that we have to multiply this 7 with 2 and the addition of 3 into that resultant number, right. So कैसे ये होगा देख लेते हैं यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर 5 है, ये हमारा होल नंबर है, and 5 should be multiply with the proper fraction. So 7 2s are 14 और 14 plus 3 जो होता है, 14 plus 3 जो होगा हमारा वो होगा 17, right. So it will become 17 upon 7. It will become 17 upon 7.
right? So again we follow the same rule, 5 multiply with 17, 5 multiply with 17 and denominator will be same, right? 5 multiply with 17 कितना हो जाएगा आपका, 5 multiply with 17, as you know the table of 17, so it would be equal to 85, it will be equal to 85, right? So the answer will be 85 upon 7, right? 85 upon 7 हो जाएगा यहाँ पर, right? 85 upon 7, 7 5 are 35 and 3 5 1 5 and 3 8, right? So यहाँ पर 85 upon 7 जो होगा it is our answer, right? तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, राइट? दिस इज़ आवर आंसर, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा आंसर है, राइट? नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, राइट? इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे स्क्रीन को ऊपर ले रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये एक्टिविटी देखते हैं, ट्राई दिस। कैन यू टेल व्हाट इज़ 1/2 ऑफ 10, 1/4 ऑफ 16 एंड 2/5 ऑफ 25, राइट? यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट? आई एम रीडिंग दैट 1 इज़ 1/2 ऑफ 10, 1/4 ऑफ 16 एंड 2/5 ऑफ 25, राइट? नाउ वी विल डू दिस, राइट? इसको हम करेंगे। सो हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट दिस, वी हैव टू लर्न दैट, राइट? यहाँ पर हमको दिया है 1/2 एंड विच इज़ ऑफ 10, तो यहाँ पर जो ऑफ दिया है उसके जगह हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, it become 1/2 multiply with 10. So again you can see that 10 is the whole number and 1/2 is our proper fraction. So again we follow the same rule which we have done in the previous examples. So 10 multiply with 1. So we know that 10 multiply with 1 equal to 10 and the denominator will be same. So it will become 10/2, right? यहाँ पर ये जो है हमारा 10/2 हो जाएगा, right? So that is 10/2. So 10/2 which is equal to 5, right? So 5 is our answer. यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 is our answer, right? So it is very easy example again, right? इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को भी करेंगे, जो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप खुद भी ट्राई करेंगे, right? That is for your practice, right? Now we see the example number 5. राइट, यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 5 भी देखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट? सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी दैट, राइट? सॉरी। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 5, लेट्स रीड दैट एग्जाम्पल नंबर 5 हियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, तो पहला सब्जेक्ट आपको इंग्लिश दिया है और दूसरा जो है विच इज़ गिवन मैथमेटिक्स, राइट? एंड देर इज़ ऑल्सो द अनदर सब्जेक्ट ऑफ द साइंस। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, राइट? सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 40 स्टूडेंट है हमारे, टोटल स्टूडेंट्स आर 40, राइट? टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 40 हैं और 40 स्टूडेंट में से 1/5 यानी 1/5 मल्टीप्लाई विथ 40। तो अगर हम 40 का 1/5 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड 40, राइट? 40 को हमको 5 से डिवाइड करना होगा, सो वी विल गेट 8। इट मीन्स दैट 8 स्टूडेंट्स, यानी कि 40 डिवाइडेड 5 8 ज़ा 40, राइट? सो 8 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर, जो 8 स्टूडेंट्स हैं, राइट? 8 स्टूडेंट जो है उनको इंग्लिश अच्छा लगता है, राइट? ये यहाँ पर हमने शॉर्ट में हमने यहाँ पर इसको समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन वी कैन जंप टू द आंसर, राइट? अगले इसमें देखते हैं, ऑफ द 2/5 ऑफ द टोटल लाइक द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि 40 में से 2/5, यानी अगेन वी कैन डू दैट 40, राइट? यहाँ पर हम फिर से इसको करेंगे जैसे हमने 1/5 इंग्लिश के लिए किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल स्टूडेंट 40 है और उसमें से हम उसका 2/5 निकाल लेंगे, right? So again if we divide 40 by 5, so we will get 8 and it should be multiplied with 2, so that would be equal to 16. So 16 students जो हैं, right, they like to study mathematics, right? 16 students जो है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर, 16 स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं। हमने देखा 8 स्टूडेंट दे लाइक इंग्लिश, 16 स्टूडेंट लाइक
the mathematics and the remaining student like to study science, right? So that is very easy answer, right? हमने देखा कि भाई 8 स्टूडेंट जो है दे लाइक इंग्लिश प्लस 16 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, राइट? तो अब यहाँ पर हमको देखना होगा कि 16 और 8 इसका जो टोटल होगा इट मीन्स दैट 24 स्टूडेंट्स, राइट? 24 स्टूडेंट जो है उनको इंग्लिश और मैथ्स अच्छा लगता है, सो रिमेनिंग जो है उनको साइंस अच्छा लगता है। तो रिमेनिंग का मतलब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट 40 है, उसमें से हमको ये 24 माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम 40 में से 24 माइनस करेंगे सो वी विल गेट अगेन 16। यहाँ पर आप देखेंगे हमको 16 मिलेगा, यानी 16 स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पर साइंस का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना अच्छा लगता है। रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, राइट? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, यहाँ पर सॉल्व भी करके बताया है, तो आप देख सकते हैं जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले निकाला हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, राइट? तो हमने देखा 1/5 इंटू 40 दैट इज़ 8, राइट? फिर उसके बाद हमने देखा हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, राइट? तो मैथमेटिक्स के लिए हमने देखा 16 स्टूडेंट, यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के बताया हुआ 16। सो हमने उसके बाद क्या किया, उसको प्लस किया, 8 और 16 को प्लस किया, सो वी हैव गॉट द 24 एंड आफ्टर फाइनली वी हैव सब्ट्रैक्टेड दिस वैल्यू 40 माइनस 24 दैट इज 16। तो आउट ऑफ 40 16 स्टूडेंट लाइक साइंस, राइट? आउट ऑफ 40 स्टूडेंट 16 स्टूडेंट लाइक द साइंस सब्जेक्ट, राइट? तो देखा फ्रेंड्स यहाँ पर आपने कितने आसान क्वेश्चंस थे। एंड नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द एक्सरसाइज 2.2 एंड इन दिस एक्सरसाइज यू विल गेट द 8 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर की हैं उसी के आधार पे यहाँ पर आपको करना है। बहुत ही ईजी है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। सो क्वेश्चंस आर वेरी ईजी एंड ट्राई इट योर सेल्फ, राइट? So you can learn that, right? You can see this is the third question and you can have the question number 4. So here are the pictures are also given, so it is very interesting to do, right? And total number of questions you can see that there are the 8 questions, right? So try it yourself, we will also help you that ऑलरेडी यहाँ पर इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कैसे करना है ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है ना? आप इस वीडियो को पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, राइट? एनालाइज कर सकते हैं। सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना? इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3, उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी सम एग्जाम्पल्स, राइट? सो यह आपको करना है, घर पे आप कीजिए इसको, फेयर बुक में इसके नोट्स बनाइए, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, उसकी क्वेरी निकाल के रखिए। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, राइट? कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप मुझे, राइट? सो आई होप इट इज़ वेरी गुड एंड जस्ट एन्जॉय दिस वीडियो and keep watching, keep learning and keep helping yourself, right? And all the very best for the exercise 2.2. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.